तो देयर इज नो ट्रेंड एट ऑल। कोई भी यूट्यूब पे आके कितना भी ट्रेंड बताएगा, लेकिन ट्रेंड नहीं है एक्चुअली। एंड जिन्होंने भी ट्रेंड बताए थे वो ट्रेंड फॉलो नहीं हुए सेकंड ईयर में। हाँ। हाँ, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस कोर्स, एक्चुअली वेरी मच हेल्प मी। एंड काफी ज्यादा क्योंकि मैंने टाइम डिवोट भी, मैंने 4 मंथ मैंने पूरा डेडिकेटेड भी नहीं दिया था। मैंने 3 मंथ्स पूरा डेडिकेटेड, फोर्थ मंथ थोड़ा ऐसे था शुरुआत का। तो उसमें जितना मैंने किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसलिए It also एंड involves your own effort as well. हाँ वो तो करना ही था। बट स्टिल, मतलब मेरे को पहले से पता था, आई एम ग्लैड कि मेरे को पहले से पता था आपके बारे में एक्चुअली, हाँ। क्योंकि मैं पता ही उससे चला था। इसलिए ना, वरना मेरे को इतना पता ही नहीं था, और मैंने कोई रिसर्च करी भी नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत साल में, क्योंकि मैं 2020 से प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने एग्जाम 2024 वाला दिया। तो मेरे को सिर्फ आपका ही पता था, और मैंने उसी पे कॉल ले ली। आप में से जो भी कॉमर्स से लॉ में स्विच मार रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होने वाला है, बिकॉज वी हैव विद अस वन ऑफ द टॉपर्स, राहुल प्रसाद, और वो अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमारे साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने काम के साथ साथ किस तरह से सीयूईटी पीजी की तैयारी करी। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। लेट मी टेल यू दैट राहुल यूज्ड टू बी वर्किंग फॉर अ टॉप एमएनसी, एंड उसके साथ साथ उन्होंने सीयूईटी पीजी की तैयारी करी है। वो हमारे सीटीपीजी मॉड्यूल और मॉक्स में इनरोल्ड थे। तो समझते हैं उनकी स्ट्रेटेजी और उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने तैयारी करी। लेट्स गेट टू नो हिम बेटर एंड हैव सम इनसाइट्स फ्रॉम हिम। लेट्स वेलकम राहुल ऑन द चैनल। सो हाय राहुल, वेलकम टू द चैनल। Tell us something about yourself, what excites you about law, and why do you choose to do law? Yeah, so my name is Rahul, as you already know, and I'm a 24-year-old working professional as of now, so I'm going to study law further. And I have done my undergraduation from Shri Ram College of Commerce of Delhi University. I've Yeah. completed that in 2021, and that's what led me to you, basically, Okay. because I know that you have also studied there. So, being from the same alma mater gives you that confidence in the other person that, you can trust the other person. So All that right. was the same. And one of the very, very, very first legal influencers, I can say, that I came to know of is you only. So I have been following you and knowing you since 2020, Oh, back nice. when in my back when I was in my undergraduation only. Okay. So yeah, that, and the interest in law has been there from the beginning, and I had realized it way back that, in order to do something that is very much rooted towards, being in a position of influence, that you can choose to do a lot of good to the society. And I've been a kind of person who wants to do things on the grassroots level, who wants to influence some things, bring about some change, and help some people. So being in corporates is not really a way to do that. And I'm there, so I took a call and gave the entrances and decided to go on to law. Okay, okay. I understand that completely, the corporate part that you say, because Shri Ram College of Commerce में आपको सिर्फ corporate world ही दिखता है पूरे time, and you have your peers. सबका यही मोटिव होता है कि eventually we have to work for some good MNC, and जब आप Yeah. law में try करते हो and you study the law, you find it so Mm. interesting. That's what really happened with me as well, because I was also Mhm. planning to do MBA, but when I Yeah. started for the entrance, I was so intrigued that this is so Mm. interesting, and something really big can be done out of this profession. And I congratulate you that you chose law rather than going to the mainstream MBA career field. So, like, when did you start? When did you like start preparing for this examination? Actually, I started back in 2021 only. Okay, Back when the earlier pattern used to be there, but I okay, didn't give any entrances due to some personal reasons. I had to go into corporates and, uh, pursue my career there for some time. But eventually, when I became ready to do the entrances, the pattern totally changed. changed. So the basic preparation started from, I would say, November last year, November 2023. The Okay, thing which happened is ki I started Googling as to what the current pattern is, and how much the syllabus has changed, how much to what extent the syllabus has been changed, and till a huge extent it has been changed. And yes. considering that मैंने पहले preparation कर ली थी, तो मेरे को काफी ज्यादा difficulty हुआ था, क्योंकि बिल्कुल the pattern had been changed Uh, totally. So I started noticing ki what's the pattern now, what's the syllabus now, what has been the trend of 1 year only. That's not a very good start to go rely on. So, and started there on. But I would say ki in the preparation I only gave 4 months, which is not optimum at all, and I do not suggest giving 4 months. It should minimum there should be 6 months, which is a very comfortable time to prepare. And I did it 4 months, which was very hectic. Which was, I had to give a lot of blood and sweat in the last months, which is very much not recommended at all. So I right. do not recommend. But yeah, that was my thing.
Okay. So what are the sources and study material that you consulted for your preparation? Okay, so I didn't really know of any coaching centers. I just knew कि you offer some guidance regarding that, and you had your courses. So I had already decided that I want to go through this, and I had the trust in you because I had known you back in 2020. So I went for it, and since the pattern had changed, so that was there in my mind कि past year papers though are not much very much relevant now because the NT is conducting this. The pattern has been changed. It has been inducted in the CUET exam. तो past year papers तो वैसे ही relevant हो गए थे. तो आई वेंट टू योर कोचिंग और combining this with the mock papers that I eventually bought from you, and the combining this with and complementing it with the other YouTube videos of preparation, random YouTube videos, not particular channel or not particular no particular teacher as well. तो वहां से प्रिपरेशन आई डिड नॉट स्टिक टू बुक्स बिकॉज एक्चुअली सिलेबस इतना वास्ट है लाइक कि अगर हम लॉजिकल रीजनिंग या कौन सी उठा लेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे तो यू कैन गो टू एनी डेप्थ, यू कैन गो टिल द डेप्थ ऑफ जीमैट एंड कैट. सो द सिलेबस इज सच नॉर्मस कि कोई लिमिट है नहीं. तो हमें मैंने कोर्स पे रिलाई किया था और डिफिकल्टी लेवल कितना एक्सपेक्टेड है उस पर रिलाई किया था, एंड नो बुक्स पर्टिकुलरली, जस्ट द कोर्स मटेरियल एंड व्हाट यूट्यूब टीचर्स हु हैव बीन देयर इन द इंडस्ट्री बट टीचिंग. Okay, okay. Yes. So then, what was your daily routine like? Because as we understand that you were a working professional, साथ में आपका काम भी चल रहा था, preparation भी चल रही थी, तो उसको कैसे manage किया and कैसे अपना routine बनाया? So, in the beginning, it started when I started studying. That was back in December. So, December, I became very much regular. Before December, I wasn't that much regular. So, since December, it started. I had known that if I start doing it from the first day itself, 4, 5, 6 hours, I won't. This is not going to be sustainable. So, I started small. I started with 1 hour, 2 hour, and I eventually proceeded to studying 6 to 8 or more plus more hours. So that was my routine, and as I was a working professional, I used to work in the day and come home or and study. So I would study till like 9 to 12 in the first month of preparation, and towards the end, I took a break from office, and I had to devote last 2 months completely because Completely. I don't think if there's any work around that because लास्ट के 2 मंथ्स तो एक्चुअली मेरे को पर्सनली लगता है कि लास्ट का 1 मंथ तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट है उसमें जाना चाहिए, एंड लास्ट के 2 मंथ्स बहुत नेसेसरी है इसके अंदर. Someone has to crack this exam or any exam for that matter. Okay, right. So, राहुल, जैसे ये जो मॉक्स हैं, आपने बोला कि आपने लास्ट 1 मंथ में मॉक को टाइम डिवोट किया, तो उसमें आप क्या कर रहे थे? बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एकदम एंड डेज के लिए लास्ट 2-3 दिन में कि मॉक दे देंगे चलो, लाइक वी हैड केप्ट 10 मॉक्स इन द होल टेस्ट सीरीज. तो वो Right. 10 मॉक्स के लिए आपने उसको 1 मंथ कैसे अलॉट किया? उसमें क्या किया? आपको क्या समझ में आया मॉक्स देके? Actually, I would say कि mocks को लोग इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है जितना देना चाहिए, and mocks are something that helped me tremendously. Actually, watching lectures and doing them is one thing, but sitting in a suitable condition and testing yourself in certain conditions is one thing. Because actually जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सब लगता है कि आता है, हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, but जब हम एक्चुअली करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें नहीं आती होती हैं. एंड 10 मॉक्स थे, उसके साथ सेक्शनल मॉक्स भी मैंने दिए काफी सारे, एंड फुल फ्लेज्ड मॉक्स तो देने ही पड़ते हैं, देने ही चाहिए. काफी सारे स्टूडेंट्स एंड इवन मेरे जो को प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे साथ, काफी सारे जिनको मैं जानता हूँ, वो काफी सारे सेक्शनल पे ही रिलाई कर रहे थे, एंड विच इज नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी इन माय ओपिनियन बिकॉज सेक्शनल कर भी लिया तो आई थिंक कि एक फुल फ्लेज्ड मॉक में ये सही रहता है कि आपका माइंड टेस्ट हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि आपका ब्रेन हर सब्जेक्ट में दिमाग लगा रहा है. एंड पिछली बार का पैटर्न था वो ये था कि सारे के सारे जैसे इंग्लिश का सेक्शन आया पूरा का पूरा, उसके बाद एलआर का आया, उसके बाद कॉन्स का आया. इस बार तो था ही नहीं है. इस बार तो 4 क्वेश्चन इंग्लिश के, फिर सीधा एलआर आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर से एलआर आ गया, फिर कॉन्स आ गया, ऐसा था. तो ये तो पता चल ही गया है कि एनटीए's पैटर्न कैन बी रियली वॉलेटाइल, एंड इवन दे डोंट स्टिक टू द सिलेबस दैट दे हैव प्रिस्क्राइब्ड, दे विल गो ओवरबोर्ड. तो ये सीरियसली ऐसा एग्जाम बन गया फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट इंस्टेंसेस. ये ऐसा एग्जाम बन गया इतना वॉलेटाइल, इतना ज्यादा थोड़ा सा अब 2 साल का पैटर्न है और 2 साल में दोनों साल बिल्कुल अलग हैं, तो देयर इज नो सच पैटर्न. तो इसलिए अब जो हम पहले किया करते थे, जो अर्लियर मॉक टेस्ट, जो अर्लियर पैटर्न हुआ करता था, पैटर्न से स्टिक करके वैसे ही पेपर आता था. अब एक्चुअली है क्या कि अब जो भी जैसे जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि जैसे आपकी वीडियो थी, कॉन्स की एक वीडियो है, ठीक है, एंड कैलेंडर एक सब्जेक्ट है उसके अंदर. तो अब मेरे को कैलेंडर पूरा करना पड़ेगा, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट करने ही पड़ेंगे उसके. देयर इज नो अदर वर्क अराउंड दैट. अगर मेरे को स्कोर करना है तो मैं सिर्फ इजी करके बैठ जाऊंगा, वो हार्ड दे देंगे. मैं हार्ड करके बैठ जाऊंगा तो मेरे को इजी वाले भी आने चाहिए. तो वो चीज़ अब सारा करना पड़ता है, इसलिए
जो ये एग्जाम पहले 3 महीने में भी, 1 महीने में भी लोग कर दिया करते थे, अब 6 मंथ इसके लिए नेसेसरी हो गया, बिकॉज यू हैव टू रियली गो इन डेप्थ। एंड मॉक टेस्ट लास्ट मंथ में मैंने ऐसा एलोकेट किए थे कि सेक्शनल मॉक्स तो चल ही रहे थे हर दिन, लेकिन आई विल मेक श्योर कि वीकली, लास्ट के वीक तो मैंने हर दिन दिए, लास्ट का वीक तो मैंने हर दिन मैंने मॉक्स दिए फुल फ्लेज्ड, बट शुरुआत में रोज सेक्शनल मॉक्स एंड 3 to 4 days में वंस एक फुल फ्लेज्ड मॉक, ओके ओके। जस्ट टू टेस्ट माय कैपेबिलिटीज एंड व्हाट आई हैव लर्नड। तो उसको फिर एनालाइज भी किया कि क्या गलती हाँ हो रही हाँ, वो वही एक्चुअली सबसे बिगेस्ट पार्ट उसका वही था कि एक स्टैंडिंग मिल जाती है कि है। वेर एम आई स्टैंडिंग स्टार्टिंग, इवन व्हेन आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे को आ गया है, आई गॉट टू नो कि मेरे से ज्यादा बहुत लोगों को आ गया है और मेरे को बहुत कम आया है, तो एक हाँ रियलिटी चेक बहुत पहले ही मिल गया था। और हाँ मेरे को जिन सेक्शंस में दिक्कत हो रही थी उनमें मैंने वर्क किया, बिकॉज दैट्स व्हाट द मॉक्स टेल यू, दैट्स व्हाट द पर्पस इज। तो मेरे को हाँ। शुरुआत से बहुत क्लियर था कि कुछ भी हो या ना हो, मॉक्स तो पहले देना ही है। हम्म। तो उसमें रैंकिंग दिखा दी थी, मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट में ले रहा हूँ, वो भी दिखा दिया था। मेरे को पता चल गया था मेरा स्ट्रॉन्ग एलआर है, मेरी वीकनेस सम पार्ट्स ऑफ क्वांट्स है, और तो मेरे को सब कुछ पता चल गया था, एंड अकॉर्डिंगली आई वुड शेप माय प्रिपरेशन एंड स्ट्रेंथन वेयर आई नीड टू स्ट्रेंथन। तो वो तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, काफी ज्यादा हेल्पफुल था। हाँ आई थिंक क्वांट, आई थिंक बहुत लोगों का वीक एरिया है, इसलिए हमने क्वांट में मॉड्यूल में लेक्चर्स भी इस तरह से डाले हैं कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ताकि आप तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस देख के प्रैक्टिस कर सको। स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टी होती है मैथ्स में। एक्चुअली ये काफी हेल्पफुल भी था कि कैटेगराइजेशन थी इजी, मॉडरेट एंड हार्ड पे, क्योंकि हाँ आज जैसे मैंने बताया कि मैंने एक नॉन ऑप्टिमम, नॉट रिकमेंडेबल एक कैलेंडर फॉलो किया 4 मंथ से प्रिपरेशन का, तो लास्ट में कुछ एक तो छूट ही रहा था, तो जो छूट रहा था मैंने उसकी इजी टू मॉडरेट कर लिया, क्योंकि हार्ड में जाने का टाइम नहीं था। टाइम नहीं एक्चुअली था। वो अगर कैटेगराइजेशन नहीं होता तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होता कि मैं कितना करके जाऊं, और मैं ऑल टुगेदर छोड़ देता। और हाँ जो मैंने छोड़े थे उसका मैं इजी टू मॉडरेट करके गया था ना, इसका भी मेरे को ये फायदा मिला था कि हम्म मेरे को वो टॉपिक आ गया था एंड वो कर दिया था मैंने। ये हम्म, कॉन्ट्स में हुआ था, कॉन्ट्स में काफी दिक्कत आएगी, काफी दिक्कत सबको आती ही है। हाँ तो और मैंने एक चीज और नोटिस की थी, बिकॉज आई वाज सीइंग कि, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज हम्म इंक्लूडिंग द कोचिंग। तो मेरे को ये पता चल गया था कि basically in your coaching subjects were covered in depth, तो हम्म when it whereas when it is given कि easy and moderate भी है, then at the same time hard भी है, हम्म, देन जब एनटीए क्वेश्चंस आए तो वो तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि वो इजी देंगे हम, मॉडरेट हाँ देंगे, हार्ड भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी थे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे। तो हम्म इन डेप्थ में आई वुड रिकमेंड कि अगर जिनके पास टाइम है एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स और 6 मंथ्स भी लेके चल रहे हैं, उनको तो इन डेप्थ कवर करना ही चाहिए, एलआर और कॉन्ट्स। क्योंकि अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंटिंग विद इंग्लिश ही कवर हो जाएगा, तो फिर तो मतलब उसका गारंटीड सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ बट हाँ हाँ, actually everyone should take it with a pinch of salt, because NT has been really really हाँ unpredictable, they can do anything, computers डाल सकते हैं वो इतना ज्यादा, they can do anything। हाँ क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है, लीगल अवेयरनेस ऐड करते हैं एंड टाइम पे और फिर उससे कोई क्वेश्चन नहीं नहीं है। आता है, विच इज अगेन अ हाँ वेरी वियर्ड थिंग कि आपने ऐड करा, इतना स्टूडेंट्स में पैनिक क्रिएट हुआ और वो आया नहीं। प्लस हाँ और और वो तो हम देख ही रहे हैं कि वो जो सिलेबस देते हैं उसके बाहर का ही पूछ ही लेते हैं। कोई हाँ पैटर्न में स्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। हम्म, वो तो एनटी के साथ प्रॉब्लम हो ही गया है अब। वी होप कि एजेंसी चेंज हो जाए, वो तो अब पता लगेगा कि हाँ अभी आपका नीट और नेट वाला केस कैसा चलता है, क्या रिजल्ट आता है उसका, उस पर भी डिपेंडेंट है काफी। तो राहुल, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इन लॉ? जैसे आप एग्जाम की स्ट्रेटजी वगैरह इन सब के बारे में तो काफी क्लियर हो, आगे हम्म। का आपका क्या रोड मैप है? Actually, as I'm coming from the corporate, so I know how it's going to be in corporate law. So that is clearly not one of my motivations. So I'm looking forward to switching into judicial exams, ओके। and I'm very clear about it. I have, I've had my whole 2 to 3 years of work ex in which I'm very clear ki what I want to do and what I do not want to do. That is more clear. So judiciary is one thing that I'm much interested, and I'll start preparing from the first year if possible. So yeah, that is going to be my further goal. ओके And ओके। one thing that helps, one thing I will tell if anyone is viewing, I'll tell ki one thing that helps in your preparation is being clear as to where you would want to go. So if it's clear in your mind where you would, obviously, when you go into a certain college, when you meet certain people and guide your mentors and your goals, certain things will change, your aspirations might change and everything, but you should have a very basic picture and ambition as to where you would want to land. And that helps in the motivation part, because when you're preparing for 6+ months, the motivation gets down weekly, daily, and even hourly. So you have to be consistent in that, and if you have a clear picture in mind, it helps, I would say. करेक्ट।
बाकी आई थिंक हमने आपका प्रेपरेशन से काफी कुछ जान लिया है कि आपने कैसे प्रिपेयर किया एंड गुड स्ट्रेटजीज एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इट सीम्स कि आपको एग्जामिनेशन की हो चुकी है. सो हम्म अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए हम्म व्हाट विल बी योर फाइनल टिप्स? my final tips would be to start as early as possible, even if that translates into starting half an hour in the beginning. But if they start early, definitely, क्योंकि actually start early is the only option because there is no trend. Because दो बेसिकली अगर मैं इसे तोड़ूं तो 2 इयर्स में एग्जाम हुआ है और 2 इयर्स में बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी पेपर आए हैं. तो देयर इज नो ट्रेंड एट ऑल. कोई भी यूट्यूब पे आके कितना भी ट्रेंड बताएगा लेकिन ट्रेंड नहीं है एक्चुअली. एंड जिन्होंने भी ट्रेंड बताए थे वो ट्रेंड फॉलो नहीं हुए सेकंड ईयर में. ठीक है, तो दैट इज देयर. तो इसलिए स्टार्ट अर्ली, गो इन डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, दे कैन आस्क यू एनीथिंग. एंड इन द एंड पेपर बहुत शॉकिंग आता है. कंप्यूटर्स जिसको आई नो जिसको 90% लोगों ने इग्नोर किया होगा, कंप्यूटर्स आ गया इन द एंड, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए उससे. तो दैट इज द प्राइम एग्जांपल की कोई ट्रेंड नहीं है. तो स्टार्ट अर्ली, go in depth of subjects, and reserve the last month of total mocks, sectional as well as full-fledged mocks, and see what you're doing, see how you're doing, your weak areas, your strengths, and where you have to improve. And that will be all, I guess, in All right. preparation. All right. Thank you so much, Rahul, for taking out time and coming out here, sharing your insights with us. And wish you all the very best for your future, whatever you wish to do in future. May you be successful in that. Thank you so Thank you, much. Ayushi. Thanks to you.